A very good evening, dear students. Good evening, Devika. Good evening, Aditya. Good evening, Rimjim, Amina, Mansi, Ayushi. How are you all doing, बच्चा? कैसे हैं आप लोग? How's the studies going on? Great. That's amazing. Good. So, did you go through? Oh, Amina, I'm excellent. Thank you, बच्चे. I'm excellent. आप लोगों को देखकर, आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर ना, a teacher always gets flourished. ठीक है? He becomes so flourished कि उसके बच्चे they are so energetic and they came to the class. Ultimately, what do they want actually? So, a very good evening, Ayushi and all the dear students. हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे आज की क्लास. The topic is, can you see the screen? क्यों आयुषी? Screen visible है? Yes. The topic to which we are about to begin for the day is the breathing and the exchange of the gases. Today is the lecture 2 to which we shall execute, and here we go. अच्छा बच्चा, आप लोगों को कुछ दिक्कत है प्रीवियस टॉपिक को लेकर? एनी कंसर्न, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? नो? सब समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हो गई? किसी भी बच्चे को कुछ परेशानी नहीं है? That's amazing. Understood each and everything. Amazing. Okay. So बच्चा, आप लोगों के लिए sir has as promised in the previous class कि उन्होंने लास्ट क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे उसका एक इलस्ट्रेशन, उसका एक एनिमेशन आपको शेयर करेंगे. So today I am about to share a small video जिसमें ये पूरा का पूरा पार्ट कवर है. आपको उसको एक बार अच्छे से देखना है. ठीक है? अगर उसमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो डोंट गेट पैनिक. Sir is there to explain that. Okay, so I tried to solve it via this illustrations, and here I'm just gonna to play that stream. Okay. The breathing and the exchange of gases. Need to stress this animation that will actually help you to understand what is this. In the breathing, basically the process that occurs, it's inspiration as well as expiration. Okay. In inspiration, what actually happens? The air to which we take, intake, that moves from nostril. If we talk about the respiratory organs, so there are so many kind of organisms that do have the various parts with respect to their respiration, like small one used to take the coelenterates via their skin. They don't even have such a developed organs, while the certain creatures like fish, they have gills. And if we talk about the humans, we are having lungs. So here, the human respiratory system is that actually begins with the nostrils, and they do have lungs, the bronchi, and the alveoli. Okay. As you can see, the larynx, epiglottis, that is trachea, है ना? बच्चे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये सारे ऑर्गन्स आपको दिमाग में रखना है कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग, हाउ विल इट गेन द थिंग. ठीक है? तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ पाएंगी. यस. ओके. सो this is what the trachea, and it actually carries in this manner the lungs. They are basically the pleura, and where it is filled with certain
Yeah. And here, as you can see, the nostrils, pharynx, larynx, trachea, ये कैसे ऑक्सीजन जो है, जो एयर है, किस तरीके से वो एल्विलाई में जाती है, और ये एल्विलाई किस तरीके से ऑक्सीजन जो है आरबीसी को दे रहे हैं और उससे CO2 ले रहे हैं। तो जो CO2 लेते हैं वो एक्सहेल हो जाती है, और जो O2 ले रहे हैं वो हमारे टिश्यूज में फॉरवर्ड हो जाती है वाया एल्विलाई। अंडरस्टूड आयुषी? समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट प्रोसेस है जो चलती रहती है। हम जिस तरह से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आरबीसी में ये ऑक्सीजन एल्वुलाई दे देता है और उसके बाद CO2 को लेकर बाहर छोड़ता है। In the last class, we came to know about inspiration and expiration via this structure. As you can see कि जब इनहेल करते हैं तो कैसे हमारा अपर्चर अपर वन एक्सपेंड करता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कैसे डायफ्राम रिलैक्स होता है। ठीक है बेटा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि एयर एंटर कर रहा है लंग में, एयर एंटर कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज्ड, क्योंकि प्रेशर आ रहा है with respect to the atmosphere, and it's going to cause the ribs. ठीक है, that will be the sternum raised, क्योंकि inner side का जो pressure है that will be there would be a difference with respect to the atmospheric pressure. Rib cage है and diaphragm they are going to get contract with. लेकिन जब expiration होता है तो जो air है वो बाहर की तरफ जाती है, it actually goes out. In that case, diaphragm gets relaxed. ठीक है, ribs sternum return to their original positions and the volume thorax it's decreased. जैसे बलून है, बलून के अंदर हम हवा भरते हैं तो कैसे इन्फ्लेट करता है, और जब उसमें से हवा बाहर निकलती है तो वो कैसे अपनी सी नॉर्मल सी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, देखो आप लंग्स कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे रिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, बिकॉज एट द इनहेलेशन ऑफ दिस एक्चुअली अकर्स एल्वेलाई। ये चीजें आपको एकदम माइंडसेट करना है कि एल्वेलाई में कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और हियर द प्रोसेस ऑफ एल्वेलाई विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम इज गिवन कि जो ब्लू पार्ट है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड कार्बन, जो हमारा डीऑक्सी आरबीसीज है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड पार्ट है। कैसे ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चल रही है, एल्वुलाई में जाके आरबीसी जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को दे रहे हैं। ब्लड स्ट्रीम्स में बच्चों ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे होता है। 90% जो है O2 ब्लड स्ट्रीम से हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, जबकि जो 3% ऑक्सीजन होता है दैट एक्चुअली वर्क्स वाया यस, सो 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट्स गोइंग टू रिलीज एज वेल, and 7% of carbon dioxides too with respect to the other. Yes, so next is transport of oxygen. कि किस तरीके से, as you can see down, oxygen plus hemoglobin. In this way जो blood vessels हैं, एक हमारा आरबीसी जो है वो एट अ टाइम 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। इट कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 and that's going to lead inside the blood vessels. बच्चों ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें इमेजिन करने की जरूरत है। अब इसका जो फिगर है किस तरह का प्रेजेंटेशन होता है, that is about sigmoid shape. It is also very important, that is termed as oxygen dissociation curve, कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करती है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, नाउ इसका जो पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस रेट से जाता है, किस रेट से आता है, द पर्टिकुलर रेशियो, दीज आर द थिंग्स टू विच वी हैव टू स्ट्रेस ऑन। दिस इज एल्वुलाई, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट। Now, carbon dioxide and water, that will be the reversible reaction that's going to product
an intermediate reaction H2CO3 और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ जब वो रिएक्ट होता है तो इस तरह से दे फॉर्म द पर्टिकुलर एसिड एंड रिलीज द प्रोटोन. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. बच्चों दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है that begins with the same manner, and here the brain plays a major part, that is the medulla. Okay, they are going to make the triggers, the things. अब respiration का function, हम जो काम करते हैं, हम जो run up करते हैं, हम जो activity करते हैं, तो we inhale, right? Disorders, जब ये bronchi वाला part block हो जाता है तो proper ऑक्सीजन नहीं आता, that's going to cause asthma. ठीक है. और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, एलर्जी वाले पार्ट, अननेसेसरी स्नीजिंग्स, फाइन, स्मोक, कई बच्चे लोग होते हैं, कई फैमिली मेंबर्स होते हैं. सो हियर वी गो विद अ होल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पिरेशन. आया समझ में? इमेजिनेशन हुआ, इलस्ट्रेशन हुआ. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक लेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, दैट वाज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. कि ब्रीदिंग कैसे होती है. द ब्रीदिंग इज बेसिकली इन्वॉल्व्स इनटू 2 स्टेजेस. ठीक है, और वो स्टेजेस कौन कौन सी है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. ठीक है, इंस्पिरेशन कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे बॉडी में अंदर आती है वाया नॉस्ट्रिल, और एक्सपिरेशन जिसमें एल्वुलाई, वो जो छोटे छोटे से पार्ट्स है लंग्स के अंदर, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है और वो बाहर जाता है. अभी आपको क्लियर हुआ कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैसे काम करता है. द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. बच्चों ये जो हवा का अंदर बाहर जाना होता है ये बेसिकली एक प्रेशर के कारण होता है. ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं. क्यों? क्योंकि देखो जो भी खाली बर्तन है या खाली सामान है या खाली जगह है, दैट ऑक्यूपाइज एयर, है ना. लेकिन उस एयर को बाहर निकालने के लिए हमें उसमें कुछ सामान डालना पड़ता है. If we have taken an earthen pot, खाली है तो हवा है, लेकिन उसको हम भर देंगे तो हवा चली जाएगी. But the continuation process of inhalation and as well as exhalation, it will require the certain pressure gradients. एक potential की जरूरत होती है. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, the lung वाला part, pulmonary cavity, is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure, क्योंकि वो उससे कम है, that is why it will be termed as a negative one. जबकि जो expiration है, that actually takes place when the intrapulmonary pressure, the pulmonary, the lungs वाला part है, is higher than the atmospheric pressure, so that will be the greater one. अब यहाँ पे जो diaphragm है ना, वो जो एक flexible U-shaped layer होती है, that actually it is a specialized set of muscles and external and internal intercostals in between the ribs help in generation of such gradients. उसी के कारण प्रेशर जनरेट होता है और एयर इनहेल और एक्सहेल हो पाता है. ओके, सो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. वो जो डायफ्राम जब कंट्रैक्ट होती है and it increases the volume of thoracic chamber, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा हवा आ पाएगी. और जब वो रिलैक्स होगी तो जो थोरेसिक चैम्बर है उसके अंदर का साइज जो है कम हो जाएगा, जिसके कारण एयर एक्सपेल कर जाएगी. इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े. गुड. अब लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट, बच्चों टर्मिनोलॉजीज में अपनी हर क्लास में कहता हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि डोर्सल एंड वेंट्रल क्या पार्ट है. अगर हम इरेक्ट खड़े हैं, स्ट्रेंड है, तो द अपर वन वुड बी द एंटीरियर, द लोअर वन वुड बी पोस्टीरियर, द फ्रंट वन इज वेंट्रल एंड द बैक वन इज डोर्सल, है ना. इन द केस ऑफ एनी क्रिएचर जो कि टिल्टेड है, हम तो 90 डिग्री के फॉर्म में खड़े हैं, लेकिन कोई एनिमल जैसे फिश है वो 180 डिग्री के फॉर्म में है, तो उसका एक एंटीरियर होगा, हमारा हेड उसका इंटीरियर होगा.
हमारा पोस्टीरियर, उसका भी पोस्टीरियर होगा। आपको इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना है कि दैट्स गोना टू मेक इट टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इट विल एक्चुअली लीड विद रिस्पेक्ट टू द हेड एंड द टोर्सो पोजीशन। ठीक है, उसी तरह से उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो वेंट्रल एंड द बैक साइड विद द डोर्सल वन। सो इट इज द लाइन, एक लाइन सेगमेंट है। आपने प्रीवियस क्लासेस में सिमेट्री पढ़ा होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, जिसको आप इक्वली दो हिस्सों में काट सकते हैं। हैवंट यू स्टडीड? क्यों रिमझिम? अमीना, मानसी, मेमूना, लावण्या, आदित्य, देविका, सानिया, आयुषी, याचना, याद है ना? So they are the basically line actually runs orthogonal to both the anterior and posterior and the left right axis। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम पता कर पाएंगे कि कैसे हमारे बॉडी में लंग्स काम करते हैं। The dorsal end is defined by the upper and the back side of an organism, while the ventral end is defined by the lower or the front part of an organism. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume। जब वो बढ़ेगा तो pulmonary volume भी बढ़ेगा, right? An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure। और वो जो है atmospheric pressure के comparatively pressure को कम करेगा। Relaxation of the diaphragm, अब diaphragm जो relax हो गई, contract होना, relax होना। So in that case जो intercostal muscles हैं that actually return to the diaphragm and sternum that we had seen in the diagram, let's check out। है ना, कि कैसे डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है और कैसे डायफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है। कंट्रैक्ट होना, जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो जो हमारा वॉल्यूम है थोरेसिक का, दैट विल इन्फ्लेट होगा और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर आएगी। और जब डायफ्राम वुड बी रिलैक्स्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, सो दैट विल लीड टू कंट्रैक्ट, द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज और जो एयर है दैट विल बी एक्सपेल आउट। It leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure that we had discussed in the previous slide. We have the ability to increase the strength of inspiration, expiration with the help of additional muscles in the abdomen। आपने योगा क्लासेस ज्वाइन की होंगी, अभी रिसेंटली नेशनल योगा डे और इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, आपके स्कूल में एक्टिविटीज की होगी, प्राणायाम कराया होगा, राइट? तो जब हम प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो अंदर पेट में कुछ फील होता है, ऐसा लगता है कि something is actually increasing and something is going to decrease in that manner? Does it work like that? So they are the muscles. Muscles of what? Abdomen muscles. They actually provide the support in order to give that maximum inhalation as well as exhalation, जिसके कारण हमारा ब्रीदिंग पे कंट्रोल होता है। और ब्रीदिंग पर अगर कंट्रोल है, दैट मीन्स हमारा पूरा परफॉर्मेंस बेस्ट होता है। सो ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times a minute। ठीक है, I'm talking about breathing, I'm not talking about heartbeat। हार्टबीट पर मिनट अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और पर मिनट एक नॉर्मल इंसान का नंबर ऑफ रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी की उसने कितने बार ऑक्सीजन इनटेक किया और कितने बार CO2 आउट किया। So the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using the spirometer, which actually helps in the clinical assessment of pulmonary functions। इससे पता चल पाता है कि जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। इसके रिगार्डिंग हमें कुछ चीजों को पता होना चाहिए, कुछ सर्टेन रेशियोज हैं जिसको कि हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। बच्चों, एयर को काय में मेजर करते हैं? हाउ कैन वी मेजर एयर? एयर क्या है, कैसे मेजर करेंगे? अगर मुझे एयर की क्वांटिटी पता करनी है, मैंने एक हवा में बलून में एक हवा भरा है कुछ अमाउंट का, कुछ क्वांटिटी का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एयर कितनी है? उसको मैं कैसे मेजर करूंगा, कौन सी यूनिट अप्लाई करूंगा? क्यों भाई, कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल मी अबाउट? आयुषी, सानिया, देविका, आदित्य, रिमझिम, अमीना, मानसी, लावण्या, मेमूना, जल्दी। याचना, इट इज मेजर्ड इन लीटर। ठीक है, लीटर में हम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टर्मिनोलॉजी देखते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स क्या होती हैं? ज्वार भाटा क्या होता है, सुना है? टाइड्स बनना, यस। So the volume of air inspired or expired during the normal respiration। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उस दौरान कुल कितनी हवा आई, कुल कितनी हवा गई,
ठीक है, बेसिकली दैट इज अप्रोक्सली 500 ml समथिंग। और एक हेल्दी पर्सन जो है वो एक दिन में लगभग 1 मिनट में 6000 से 8000 ml एयर को इनहेल और एक्सहेल करता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये क्या बोला है? दैट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सिबल इंस्पिरेशन। हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं दैट इज ओके, लेकिन जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हम मैक्सिमम एयर लेते हैं, तो हम फोर्सफुली हवा ले रहे हैं ना। हमारा नॉर्मल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा रेस्पिरेशन नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा तो आई विल टेक सम मोर फ्रीक्वेंसी एंड अ मोर क्वांटिटी ऑफ एयर एज कंपेयर्ड आई एम स्पीकिंग राइट अवे। तो वो मसल्स के कंट्रोल के कारण ही मैं ले पाऊंगा, एंड दैट विल बी डन वाया फोर्स, एक फोर्स अप्लाई होगा, है ना। सो इन दैट केस ऑन एन एवरेज 2500 ml to 3000 ml तक फोर्सफुली एक्स्ट्रा एयर कुड बी इनटेक। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब एडिशनली जस्ट जब हम एक्स्ट्रा एयर ले सकते हैं तो समहाउ कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर हम बाहर एक्सपेल भी कर सकते हैं फोर्सफुली, सो दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज द 1000 ml अप्रॉक्स। अब नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब स्टे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपिरेशन। हम जब फोर्सफुली हवा बाहर छोड़ते हैं अपनी नाक से, अपनी नेजल से, तो हमारा जो लंग है वो खाली नहीं होता, उसमें तब भी कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट रहती है। तो और उसकी क्वांटिटी कितनी रहती है? 1000 से 1200 ml के बीच। एंड बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, one can derive various pulmonary capacities which can be used in the clinical diagnosis. Basically इसका यूज होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। अभी आपने देखा होगा, इनफैक्ट कोरोना टाइम पे लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम था। अब जिन लोगों को अस्थमा का इश्यू रहता है या जिन लोगों को लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, अगर आपके जान पहचान में अड़ोस पड़ोस में कोई अगर होगा तो उनको जरा जरूर मिलिए, उनसे जरूर समझिए कि डॉक्टर्स या जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो उनसे रूटीन बेसिस पे जाके अपना लंग्स का कैपेसिटी चेक करवाते हैं कि उनके जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो क्या है, उसके लिए कौन सा मेडिकेशंस लेते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्क ऑन देयर लंग्स लाइफ। ये छोटा छोटा नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो हम उसमें आपने कई बार कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसमें हमने इनहेल किया। हम देख सकते, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैक्सिमम गैस को इनहेल कर सकते हैं फॉर 10 to 20 सेकेंड्स? देविका, आतिया, रिमझिम, अमीना, मानसी, लावण्या, मेमूना, सानिया, सब फटाफट अपना कैमरा चालू करो, एक एक्टिविटी करेंगे। फटाफट एक्टिविटी करेंगे, कैमरा चालू करो जल्दी। देविका, हाँ अतिया, आप एस्थमेटिक हैं, ठीक है, आप मत करिएगा, बाकी दूसरे बच्चे निकालिए फटाफट। देविका, रिमझिम, मानसी, फटाफट कैमरा चालू करो, ठीक है। किसी बच्चे को, जैसे इसने मुझे आतिया ने बताया कि उनको प्रॉब्लम है, और किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो नहीं है? नहीं है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, और मैं आपको जब बोलूंगा स्टार्ट तब आप लोगों को गैस इनटेक करना है, और जब मैं बोलूंगा स्टॉप तो सांस लेना बंद करना है, लेकिन सांस छोड़ना नहीं है। यू हैव टू इनटेक द गैस द मोमेंट आई विल से स्टार्ट, एंड द मोमेंट आई विल से स्टॉप you stop taking in the gas, होल्ड करना है, और जितने देर होल्ड कर सकते हो उतने देर होल्ड करना है। जब मैं बोलूंगा रिलीज तब आपको वो गैस रिलीज करना है, ठीक है। दिस इज एन एक्टिविटी, क्योंकि द चैप्टर वी आर स्टडिंग वी मस्ट नो व्हाट वी आर स्टडिंग। हमको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। रिमझिम, कैमरा चालू करो फटाफट। मानसी, सानिया, मेमूना, क्विक, चलो। अब जिन बच्चों ने कैमरा किया है, आप लोगों को एक एडवांटेज मिलेगा कि जो आप लोग के जो टेस्ट होंगे ना, आई विल गिव यू द इंटरनल बेनिफिट, इंटरनल क्रेडिट्स। और जो बच्चे कैमरा चालू नहीं कर रहे हैं उनको माइनस मार्किंग देने वाला हूं मैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव देम माइनस मार्किंग, डोंट वरी, मत खोलो कैमरा, ठीक है, बिकॉज आई एम नोटेड डाउन कि मेरा कौन कौन सी एक्टिविटी में मेरा कौन कौन सा बच्चा कितना इन्वॉल्व है। इंटरनल मार्क्स तो मेरे हाथ में है, आई हैव टू गिव यू, है ना। द मोमेंट आई विल से स्टार्ट, आपको इनटेक करना है, गैसेस लेना है हाँ सान्या, आप विजिबल हो बेटा, मानसी भी विजिबल है, ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट टेकिंग ब्रीदिंग, सांस लो, सांस लो, यस, सांस सांस लेना शुरू करो, स्टॉप स्टॉप,
सांस छोड़ना नहीं है, डोंट रिलीज, होल्ड इट, नाउ रिलीज, छोड़ दो सांस। क्यों भाई, कितने बच्चे जिन्होंने इसको नॉर्मली कर लिया और कितने बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा? देविका, आराम से हो गया था कि प्रेशर लगाना पड़ा था यहाँ पे? डिड यू फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर? हाँ, दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग। जब डायफ्राम जो है रिलैक्स होता है या डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो हमारा लंग का जो थोरेसिक चैम्बर है वो कुल कितना ऑक्सीजन इनटेक करता है, कितना होल्ड करके रख पाता है। और उसके बाद द मोमेंट हम सारा का सारा ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, तब भी वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट में गैसेस रहती हैं, एंड दैट इज मेजर्ड इन ml। 1000 से 1200 ml के बीच में भी गैसेस रहती हैं। सो दिस इज टर्म्ड एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। द मोमेंट वी टुक गैस इनटेक, वी होल्ड इट एंड वी रिलीज्ड, पूरी निकाल दी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब हमने जितनी सांस छोड़ी, उसके बाद हमने कुल कितनी सांस ली? आप लोग अब नॉर्मली सांस ले पा रहे हो, है ना? इससे पहले जब मैंने आपको सांस लेने को बोला था, व्हेन आई टोल्ड यू टू टेक सच अ डीप ब्रीथ, उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रेशर लगा था। क्यों आयुषी, यू फेल्ट समथिंग, लगा था ना? है ना देविका, याचना, सानिया? देन उसके बाद नाउ यू आर नॉर्मल। So this is what the extra effort, this is what the extra force that actually we implement, है ना? और ये हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी में जो मसल्स हैं वो हमको इसको करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट देखो, मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, रिमेंबर, जो फोर्स इंस्पिरेशन है, दैट इज द इंस्पिरेशन व्हेन इंस्पिरेशन इज असिस्टेड बाय द एक्सेसरी मसल्स। ये बेसिकली एक्स्ट्रा मसल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं हमारे टिश्यूज फॉर द लंग्स, है ना? और वो उसको डैमेज से बचाती हैं। दैट इज स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, ये 3 मसल्स हैं, एंड स्केलिन मसल्स अलोंग विद द डायफ्राम, एंड इट हेल्प टू टेक मोर एयर इनसाइड लंग्स। और इसकी वजह से ही जब आपने सांस लिया तो देखो इस जो बगल में जो रेड रेड मसल्स हैं ये भी प्रॉपर सपोर्ट करती हैं। आपको यहां पर भी एक सेंसेशन फील हुआ होगा। क्यों आयुषी, डिड यू फील समथिंग? कि है ना, अ प्रेशर जनरेटेड the moment you took, you felt, the moment you hold it, the air, it is on the chest, and the moment you released it, so you are feeling so comfortable in that. तो ये मसल्स हैं और इनका नाम क्या है? स्टेरोन्यूक्लियोमेस्टॉइड। अब ये स्टेरोन्यूक्लियोमेस्टॉइड, each, this is the 3 one, each of a pair of long muscle which actually connect the sternum, clavicle and the mastoid process, तीनों को कंटेक्ट करते रखता है आपस में। ठीक है। एंड द टेम्पोरल बोन एंड द सर्व टू टर्न एंड द नोड द नेक, और इसी के कारण हम हमारी गर्दन को ट्विस्ट कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। इट विल हेल्प अस टू मूव एंड रोटेट आवर नेक अकॉर्डिंगली। ठीक है। आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपनी गर्दन को रोटेट कर लेते हैं, और कितने बच्चे जिनको चक्कर आता है? कभी किया है? बचपन में तो हमेशा करते रहोगे गोल गोल घूमना, लेकिन जैसे जैसे एज फैक्टर होने लगा, हमने चीजों, बचपन वाला जो खेल था उसको हमने स्टॉप कर दिया, है ना? चक्कर आना, झूला झूलना। ऐसे कितने बच्चे जो मेला जाते हैं और झूला झूलते हैं और उनको चक्कर आता है, उल्टियां होती हैं? क्यों अमीना, नहीं होता? वेरी गुड, बिकॉज दिस इज वॉट के समहाउ द रिजिडिटी इन द मसल्स टेक प्लेस। मैं विजिबल नहीं हूं? क्यों मैं विजिबल नहीं हूं? एम आई विजिबल आयुषी? हाँ देविका, अमीना, एम आई विजिबल? ठीक है। हाँ, यू एंजॉय थिंग्स, यस, बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द लाइफ, लेकिन विथ केयर, है ना? सो व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट, ये देखो जो मिडल स्कालेट मसल्स हैं, द पोस्टीरियर स्केलिन मसल्स हैं, और ये जो इंटीरियर स्केलिन मसल्स हैं, जब हम सांस लेते हैं फोर्सफुली तो ये मसल्स भी सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स गोना टू रेज in order to hold that thing. ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, the total volume of air a person can expire after the normal inspiration. normal inspiration के पास कुल कितनी सांस छोड़ता है वो? it is that only. हाँ देवी का कुछ पूछना बेटा? नहीं? ठीक है। so functional residual capacity,
जो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट एक्चुअली दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब नॉर्मल जब सांस हमने छोड़ा, देखो एक होता है सांस जो हमने फोर्सफुली छोड़ा और एक सांस है जो हमने नॉर्मल छोड़ा। तो जब हमने सारी सांस दम लगा के बाहर छोड़ दिया तब भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट में गैसेस थी, और जब हम नॉर्मल सांस छोड़ते हैं तो उसमें उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, एंड इट कुड बी ऑफ एनी। वाइटल कैपेसिटी, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration। बलपूर्वक सांस लेने के बाद जो पर्सन नॉर्मल सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, दिस इज टर्म्ड एज द वाइटल कैपेसिटी। और जो टोटल लंग कैपेसिटी है, दैट अ वॉल्यूम ऑफ एयर अकम्पेन्ड इन द लंग्स। अतिया, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। एट द एंड ऑफ द फोर्स रेस्पिरेशन, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? कैपेसिटी, द रेसिडेंशियल वॉल्यूम। अतिया, can you switch on the camera बेटा? ओके, ठीक है। द मोमेंट मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली जिन बच्चों को या जिन एडल्ट को रेस्पिरेशन को लेकर ड्रॉबैक्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनका जो लंग होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो वेरी करता है। आप देख सकते हो जितने भी चीजें मैंने इधर डिस्कस करी, ये उसका परसेंटेज है। नीचे रेड है, ब्लू है, ERV, RV, IC, FRC, VC, TLC। जब कभी भी अस्थमा के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है तो उनका जो चेकअप होता है, तो वो चेकअप इस तरह से एक बार ग्राफ में किया जाता है कि द मोमेंट पेशेंट ने इनहेल किया तो उसका कैपेसिटी कितना था, कुल कितना एयर वो इनहेल कर पाया, और द मोमेंट उसने एक्सहेल किया तो कुल कितने सेकंड तक वो विदाउट एयर था। तो दिस इज व्हाट अबाउट। अतिया, हैव यू कम अक्रॉस विद सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस? डॉक्टर्स को जब आप दिखाते हो तो आप कैसे, मतलब आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स को कि जब डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं तो उसके पहले उनका एक नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर माउथ पीस दे टेक इट, क्या बोलते हैं उसको, दे यूज टू टेक इट इन देयर माउथ एंड देन दे हैव टू इनहेल द एयर फोर्सफुली इन ऑर्डर टू चेक कि हमारा जो लंग है वो कुल कितनी एयर इनटेक कर सकता है। इट इज द टोटल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? है ना? हाँ बच्चा, ये जरूरी है एंड नीड टू स्ट्रेस ऑन, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है अपने हेल्थ को लेकर। बिल्कुल ध्यान रखो, डाइट वगैरह पे भी फोकस करो। यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्विलॉय, अभी समझ में आया एल्विलॉय क्या चीज है? ठीक है, सो एल्विलॉय आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। लंग्स से जो हवा जाती है, नॉस्ट्रल से होते हुए लंग्स में जाएगी, लंग्स में हमारे पास एल्विलॉय है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एल्विलॉय के बारे में और बेटर पिक्चर शो कर पाऊंगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व गैस रहती है, वो आती है एल्विलॉय के पास। एल्विलॉय से आरबीसी ऑक्सीजन लेता है और CO2 उसके पास देता है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है इन गैसेस की, एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। यस, किस तरीके से हम क्या गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये भी डिपेंड करता है। हम नॉर्मल इंसान हैं और हम जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां पे नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन जो कुछ लोग कोयले की खदानों में रहते हैं, द पीपल दोज हु एक्चुअली लिव एंड वर्क इन द कोल माइंस, ठीक है, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा सफोकेशन आता होगा क्योंकि दे आर इनटेकिंग द गैसेस, और गैस में पॉल्यूशन है, कार्बन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। सो अल्टीमेटली वो कहां जाके जम जाएगा, लंग्स के एल्वुलॉइज में, और वहां पे जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये वहां जाकर उसको ब्लॉकेज कर देगा। अभी आने वाली स्लाइड में आई एम गोइंग टू शो यू द सेम थिंग। अब जो पार्शियल प्रेशर होता है, दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर इन द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन, इट मे वेरी। और जो डाटा गिवन, देखो रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर में इतना होता है, एल्वुलॉय में इतना होता है, ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो ये सॉर्ट ऑफ सर्टेन डाटा। ठीक है, आपके घर के आसपास जिस एरिया में आप रहते हो वहां पर क्या कोई पर्यावरण निवास है या कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है जहां पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडीज, फैक्टर्स या रिसर्च होते हैं? अगर हो
तो अच्छी बात है, नहीं हो तो जरा वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि जहां उनका ऑफिस होता है बेटा, वहां पर वो एक डिस्प्ले लगा कर रखते हैं। जैसे डिजिटल क्लॉक होती है जो हमें टाइम बताती है, टेम्परेचर बताती है, ह्यूमिडिटी बताती है, वैसे ही इन ऑफिसेस का बेसिकली गवर्नमेंट जो है लगा के रखती है, जो ये बताता है कि एट प्रेजेंट पॉल्यूशन रेशियो क्या है, एट प्रेजेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है। दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी, इट इज बीइंग एक्चुअली जनरेटेड ओवर देयर। तो देखो, एज यू कैन सी, ये हमारा लंग होता है, और लंग्स में इस तरह से जो अपेंडेजेस हैं वो एल्वुलाई होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये उसका एक एनलार्ज्ड फॉर्म है, और यहीं से इसके बगल से जो ब्लड है वो ऐसे मूव करके जाता है, यू टर्न करके होके जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेता है, और जो जो O2 है वो ले लेता है, और जो CO2 है वो दे देता है, जिसके कारण अब ब्लड में, आरबीसी में ऑक्सीजन आ गया तो वो दूसरे टिश्यू तक पहुंचा देगा, और एल्वुलाई में CO2 आ गया तो वो लंग्स के द्वारा नॉस्ट्रल से होते हुए बाहर भेज देगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है। और बगल में आप देखो जो फिगर गिवन है, द बॉडी टिश्यू, कैसे हमारा जो हार्ट है, द ब्लू वन, हमारा जो द ब्लड है विच इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रेड वन है दैट इज कैरिंग द ऑक्सीजन ब्लड, और कैसे वो एक्सचेंज करता है एल्वुलाई में। ये एल्वुलाई वही है जो यहाँ पर मेंशन्ड है, और यहाँ पे P जो है दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, कितने प्रेशर से है, और इसको मेजर किया जाता है मरकरी में। ठीक है, एल्वुलस दैट इज इंस्पायर्ड एयर, दैट इज एक्सपायर्ड एयर, एंड द फर्दर रेशियोज। So similarly, a gradient is present for the carbon dioxide in the opposite direction from tissue to blood and blood to alveoli. Tissue blood को CO2 दे देता है और उससे ऑक्सीजन ले लेता है। ब्लड के पास जो CO2 आ गया वो एल्वुलाई के पास ले गया, उसने एल्वुलाई को CO2 दे दिया और उससे ऑक्सीजन ले लिया। As the solubility of the carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, so जो amount होता है carbon dioxide का, they can diffuse through the diffusion membrane per unit differential partial pressure that is much higher as compared to the oxygen, और oxygen के comparatively बहुत ज्यादा होता है। अब जो diffusion होता है, membrane is made up of the three major layers. पहला thin squamous, दूसरा endothelium, और तीसरा basement substance. इनमें भी पर्टिकुलर लेयरिंग्स होती हैं। Why? Because they compose to sustain the thing properly. However, its total thickness is much less than the millimeter. थिक बोला थिक गया है, बट ये एक्चुअली बहुत कम फॉर्म में थिक होता है। एंड therefore जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं इन अवर बॉडी, दे आर द फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द एल्वुलाई। तो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर आएगा तो चीजें प्रॉपर्ली मूव करेंगी। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो हमारे आरबीसी के पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरा पॉल्यूटेड एयर अगर अवेलेबल होगा तो हमारे ब्लड में वही गैसेस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होंगी। इज दैट क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, अतिया, आयुषी, देविका, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो अभी मैंने वीडियो में आपको बताया, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर एफिनिटी, किस चीज को लेकर बेटा, किस चीज को लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, है ना? हाँ, अल्टीमेटली दे आर द सर्टेन पॉइजनस फॉर्म ऑफ द गैसेस, दे आर गोइंग टू कॉज द ऑक्सीजन टू कंबाइन। यस, जो गैसेस का परसेंटेज ज्यादा होगा वही तो आरबीसी के साथ ज्यादा से ज्यादा कंबाइन कर पाएगा, है कि नहीं? द अवेबिलिटी। सो जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, that actually work how? Blood is the medium of transport, yes or no? O2 and CO2. About 97% of oxygen is transported by the RBCs in the blood, और एक RBC में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। So the remaining 3% of O2 is carried in a dissolved state through the plasma, जो अभी हमने वीडियो में देखा था, and nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by the RBC, जबकि 70% जो इसका जो फॉर्म होता है दैट इज बाइकार्बोनेट। हमने HCO3 जो पढ़ा था, H2CO3, है ना? हाँ, और अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट इन द डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगी।
क्या आपको ये समझ में आया या मैं आपको इसको फिर से समझाऊं? आ गया? ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन वो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। सानिया कौन सा टॉपिक समझाऊं? कौन सा टॉपिक बच्चे? विच टॉपिक शैल आई नीड टू एक्सप्लेन यू बेटा? देखो, हमारे पास कोई भी चीज का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं 100, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ठीक है, एक कोई भी चीज अगर हम डिस्क्रिप्शन में लेते हैं, इफ वी टेक एनीथिंग इन पर द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं 100। ठीक है, सो 100 को हमने फॉर्म लिया और हमारे ब्लड में जो एक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हम जो भी गैस इनटेक कर रहे हैं या जो गैस हम आउट कर रहे हैं वो गैस डायरेक्ट नहीं जाती, वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर ही टिश्यूज और सेल तक पहुंचती है। सानिया क्लियर है? यस और नो? बेटा फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए तो मुझे पता चल पाएगा कि मैं आपको सही ट्रैक में लेके जा पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, और हाँ, अब जब इसमें गैस डिसॉल्व है तो जो ऑक्सीजन है वो भी उसमें डिसॉल्व होगी, बोलो हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होगी क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हाथ तो है नहीं, उसके पास तो कॉनकेव बेस है जिसपे जाकर वो मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाता है और वो उसको ब्लड स्ट्रीम में कैरी करता है। अब तो इतना परसेंट में 100 में से 97 जो परसेंट ऑफ गैसेस होती हैं वो बेसिकली आरबीसी के द्वारा ट्रेवल होती हैं, और बची हुई जो 3% गैस होती हैं वो बेसिकली जो प्लाज्मा है उसमें जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उनके साथ अटैच रहती हैं, लेकिन वो किसके साथ रहती हैं दैट इज नॉट क्लियर, इसीलिए उसको वर्ड प्लाज्मा यूज किया है। ठीक है, किस पर्टिकुलर सेल टाइप के साथ वो अटैच रहती है। अब जो रिमेनिंग ये मैंने आपको बता दिया। अब नियरली 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, जबकि 70% इज कैरिड एज अ बाइकार्बोनेट। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन इज द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड इटसेल्फ, क्योंकि वहां पे दो एलिमेंट जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो जो है उस प्रोडक्ट के कारण, क्योंकि 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। बाइकार्बोनेट प्रीवियस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था और आने वाली रिएक्शन में भी मैं आपको बताऊंगा, H2CO3, ठीक है, जो कि बाद में टूट करके HCO3 माइनस प्लस H करके रिप्रेजेंट करता है। आने वाली स्लाइड में दिस इक्वेशन इज देयर, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा ये वो रिएक्शन है दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो रिलीज होता है तो 70% इज बेसिकली रिलीज्ड वाया बाइकार्बोनेट फॉर्म एंड 20 to 25% दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। अब बच गया कितना? 7%। वो जो 7% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ दो कंडीशन से जाता है, आरबीसी के साथ प्लस प्लाज्मा के साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में जाता है, इंडिविजुअल बाइकार्बोनेट कंपाउंड के साथ, नंबर 2 आरबी के साथ, आरबीसी के साथ, एंड नंबर 3 प्लाज्मा के साथ। इज दैट क्लियर? हाँ, अब बात हो रही है, दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड, गुड जॉब। सो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का कंपाउंड होता है, पिगमेंट होता है। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है ना। और ऑक्सीजन जो है दे कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यस, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, आरबीसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, और आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन जो है उसको उसने ऑक्सीजन को जाके टिश्यू को दे दिया तो वापस से वो हीमोग्लोबिन बच गया, है ना। सो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी द मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स of oxygen that we had discussed in that video. The binding of oxygen with the hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. तो बच्चों उसके साथ कोई चीज जुड़ती कैसे है? हम अगर झूला झूलते हैं, इफ वी गो टू द स्विंग राइड्स, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को बांध लेते हैं, बांध लेते हैं ना। अदरवाइज हम बांधेंगे नहीं तो क्या होगा? जैसे ही स्विंग जंप करेगा हम धड़ाम से बाहर जाके गिरेंगे। गिरेंगे कि लटके उसी में बैठे रहेंगे? बिकॉज इट विल जनरेट द प्रेशर।
और उस प्रेशर के जनरेट होने के कारण हमारा जो बॉडी है वो मूव करता है। सो हम यहाँ पर बाइंड करते हैं अपने आप को विद दैट स्विंग। लेकिन बॉडी में, ब्लड में ये जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, वो कैसे उस आरबीसी पर जुड़ा रहेगा? उनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, और वो बॉन्डिंग काहे की रहेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आपने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो चार्जेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है अपने साथ चीजों को होल्ड करने की। सो द सेम मैनर दे विल रन। और ये प्रेशर पार्शियल रहता है, पूरी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से प्रेशर अगर अप्लाई होगा तो वो जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, वो आरबी के साथ ही घूमता रहेगा, आरबीसी के साथ ही घूमता रहेगा। लेकिन आरबीसी तो टिश्यू से होके जा रहा है, तो उसने ऑक्सीजन उसके पास छोड़ दिया और वो फ्री हो गया। अंडरस्टूड? The partial pressure of carbon dioxide, that is the hydrogen ion concentration and the temperature, are the other factors which can interfere with this binding. Yes, जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिनको ब्लड में इन्फेक्शन होता है, या जिन लोगों का बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, उनको ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो प्रॉपरली काम नहीं करते, स्पेशली जिनको डिसऑर्डर होता है रेस्पिरेशन को लेकर। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि ये आरबीसी के साथ ऑक्सीजन को बाइंड होने ही नहीं देते। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये वो जिग्मॉइड कर्व है जो हमने उस समय फिगर में देखा था। A sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the pressure applied, partial pressure applied of oxygen. ठीक है। So this curve is called oxygen dissociation curve. Dissociation मतलब टूटना, breakup होना, and is highly useful in studying the effect of factors like partial applied pressure of the carbon dioxide, जहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिलीज होता है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिलीज करेगा। अब जब ये आरबीसी के साथ जुड़कर एल्वुलाई के पास चले जाते हैं, तब क्या होता है? इसी पार्शियल प्रेशर के कारण एल्वुलाई आरबीसी को ऑक्सीजन दे देता है और आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, क्योंकि वहां पर जो अप्लाइड प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन का कुछ काम ही नहीं है बेटा अतिया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का तो कुछ काम ही नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। सो इन दिस केस it actually executes with respect to the hydrogen ion concentration, and this clearly indicates जो oxygen है that gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues, वो lung के surface पे bind कर जाता है। और every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen the tissue under the normal physiological conditions। तो normal physiological condition में अच्छा केमिस्ट्री वाला, हाँ ठीक है, तो ऐसा हो सकता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इन केमिस्ट्री सर, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो एलिमेंट है, लेकिन आरबीसी जो है दैट इज द इटसेल्फ अ बॉडी, अ टिश्यू, है ना। तो उसमें हीमोग्लोबिन ऑलरेडी है, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन उसमें कंपाउंड है, तो समहाउ दैट दे में अकर, सो इट इज दैट काइंड। और एक चीज याद रखो कि अगर एक नॉर्मल पर्सन, उसमें जो है 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन की जो कुल क्वांटिटी रहती है दैट विल बी 5 ml। समझे? आया समझ में? दिस इज द एल्वुलाई। ये जो ब्लू वाला है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, निकल के बाहर जा रहा है। जो रेड वाला है वहां से CO2 सॉरी ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में जा रहा है, और जो ब्लू वाला है उसमें CO2 जो है वहां से रिलीज होकर के नेजल से बाहर जा रहा है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? अब हियर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे हमने ऑक्सीजन पढ़ा, द सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन
और ये कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जब बाइंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजन जो है दैट इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डिस्टर्ब कर देगा और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है ना, दिस इज द वन वे प्रोसेस है। अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो दूसरे के अटैचमेंट को प्रॉब्लम दे देगा। So जब कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड ऑक्सीजन इज लो इन द टिश्यू, द मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। जबकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड टू द एल्वोलाई। अब टिश्यू में आरबीसी में जो एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो एल्वोलाई में चला जाता है और एल्वोलाई से वो नेजल कैविटी से बाहर चला जाता है। और यहाँ पे आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, जिसके कारण ये जो है फॉलोइंग रिएक्शंस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम के प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बनाता है दैट इज H2CO3 और वापस ये रिएक्ट करता है तो उसको HCO3 माइनस और H+। याद है सानिया, आयुषी, मैंने बोला था ना प्रीवियस वाली रिएक्शन में बोलूंगा। सो दिस इज दैट रिएक्शन। अब टिश्यू लेवल पे क्या होता है, जहां पर जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों को टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब चीजों का जुड़ना। तो कैटाबॉलिज्म होने के कारण ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा इनटू ब्लड तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। अब जितना ज्यादा वहां पर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा HCO3 एंड H+ प्रोडक्ट करेगा, क्योंकि वो CO2 और उसके इसमें ब्रेकअप क्रिएट करेगा। अब जो एल्वुलर साइट है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो जो रिएक्शन है दैट इज प्रोसीड्स ऑपोजिट, तो वहां पे चीजें उल्टी होंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वुलाई दैट इज रिलीज्ड आउट एज अ CO2। और यहाँ पर 100 ml अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो उसमें कुल कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, दैट विल बी डिलीवर्ड टू एल्वुलाई, इट वुड बी 4 ml। और ऑक्सीजन के केस में that was the 5 ml। समझ में आया? That is solely based on the concentration of both। सानिया, is that clear? ठीक है। Regulation of respiration, ठीक है। So human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. Yes, and this is done by the neural system. स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला, हमारे हेड पे जो हमने फिगर में देखा था उस वीडियो में, that is called respiratory rhythm center and that is primarily responsible for the regulation of this activity. Another center present in the pons region of the brain that is called pneumotaxic and center that can moderate the function of the respiratory rhythm center. अब जो न्यूरल सिग्नल है वो क्या करता है, इस सेंटर से वो रिड्यूस करता है द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। मतलब यही जो है वो रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है और डिले करता है। जितने आराम से लॉन्ग ब्रीदिंग होगी उतने ही आराम से एक्सेल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का स्लोली। अब यहाँ पर कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के बगल में, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आयंस। एन इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्चुअली एक्टिवेट दिस सेंटर। इसका जो परसेंटेज कम ज्यादा होता है जिसके कारण ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट in the respiratory process by which these substances can be eliminated. अब receptors associated with the aortic arc and the carotid artery also can recognize the change in carbon dioxide and hydrogen concentration that actually send the necessary signals to the rhythm that is center for the remedial actions, ताकि इसका कुछ सॉर्ट आउट निकाला जाए और अगर जरूरत हो तो जो ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आउटकम हो रहा है वो प्रॉपर्ली चैनलाइज हो सके। अब यहाँ पर जो रोल होता है ऑक्सीजन का इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इट इज ओके टाइप। डिसऑर्डर्स, ये आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे तो हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे,
disorders of the respiratory system. अस्थमा, ठीक है, एम्फीजीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा एक डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, and that causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles. जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन इनटेक नहीं हो पाता, जिसके कारण चोकिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ा है कि चोकिंग हो जाती है, जिसके कारण जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता वेन्स में, आर्टरीज में। उसी तरह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब थिकनिंग हो जाती है, और थिकनिंग क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स, है ना, दे आर गोना टू कॉज इरिटेशंस एंड ऑल। इन्फेक्शन के कारण कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। सो इन दैट केस दैट्स गोइंग टू कॉज द इन्फ्लेमेशन। नाउ एम्फीजीमा, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एल्वियोलर वॉल्स हैं दे आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। ये डैमेज हो जाते हैं, और जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम होने लगता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। बेसिकली ये उन पेशेंट्स के साथ होता है जो कि स्मोक करते हैं। और तीसरा होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बेसिकली इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली जो इन्वॉल्व ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, मैंने कहा था ना, कोल माइंस जो पत्थर का कटिंग कराते हैं, जो ग्राइंड कराते हैं, उसमें जो डस्ट निकलता है, तो ये सारी चीजें वहां का जो स्टाफ होता है, जो लेबर्स होते हैं, दे बेसिकली सफर विद इट, and so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with this situation। क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी का एक स्टेमिना है, उसके बाद कोई चीज अगर प्रेशर से अप्लाइड होगी या कॉन्स्टेंटली वहां पे चीज अवेलेबल होगी, तो दैट विल गोना टू लूज इट्स स्टेमिना एज वेल। सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फिब्रोसिस, है ना। फिब्रोसिस क्या है? दैट इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू। फिब्रस टिश्यू में आउटग्रोथ होना, स्वेलिंग हो जाना, उसमें डैमेज कॉज होना, एंड दस कॉजिंग द सीरियस लंग्स डैमेज। यही कारण होता है। एंड वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर द प्रोटेक्टिव मास्क। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स या लेबर्स को प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्टोन क्रशिंग पार्ट है, ये बेसिकली एल्वोलाई में जाके उसको ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसके कारण फ्लूइड फिलिंग होना या रिजर्वॉयर हो जाता है, जिसके कारण सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं। और एक बार सेप्सिस हो जाता है, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू क्योर, एंड अल्टीमेटली द पेशेंट लीड टू द डेथ। सो बच्चों, आज के टॉपिक में अगर कुछ दिक्कत है तो पूछो, otherwise today we have completed the topic. The name is breathing and gaseous exchange. Yes, सानिया, याचना, देविका, अमीना, मानसी, मेमूना, रिमझिम, आतिया, आयुषी, क्या डाउट है बेटा? क्या क्वेरीज हैं आपकी अबाउट टुडेज टॉपिक? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई टॉपिक जो समझ नहीं आया? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अच्छा, ओके, आई टेल यू। बिकॉज पहले तो हम क्यों, एग्जाम वगैरह है क्या कुछ आपका? ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। मैं देखता हूँ कि हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है। क्यों भाई, मेजोरिटी क्या बोलते हो? लेट्स बिगिन विद दिस द चैप्टर। हाँ, चलो लेट्स बिगिन विद मॉर्फोलॉजी। कल ही हमारी क्लास है, टुमारो वी हैव अ क्लास। हाँ, स्मोक कैसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करता है, ठीक है, बताता हूं मैं, एक मिनट। कोई बात नहीं बेटा, आई एम हियर टू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम्स। सॉल्व करेंगे ना, हमें तो वैसे भी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर बाहर पढ़ रहे हैं। पहले हम उन चैप्टर्स को खत्म कर रहे हैं जो कि ज्यादा वेटेज वाले मार्क्स के हैं, है ना, ठीक है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। किसने मुझे क्वेश्चन शूट किया है? अमीना ने मुझे क्वेश्चन शूट किया है कि सर, हाउ डज स्मोकिंग कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम? स्मोकिंग, मैंने इसके रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी बताई थी। अमीना, कम ऑन, कैमरा चालू करो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू विल गेटिंग इट और नॉट। फटाफट कैमरा चालू करो। कैमरा बंद करके स्टडी नहीं होती बच्चे, और कक्षा का तो ये एक रूल होता है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो।
दैट्स अमेजिंग। याद है मैंने बहुत पहले एक एक्टिविटी करवाया था? नहीं कराया था, ध्यान नहीं है। वेरी गुड। कहाँ है ध्यान भाई? पढ़ना लिखना नहीं है, मस्ती करना है बस। अच्छा कोई बात नहीं, मस्ती भी करो पढ़ाई भी करो। बच्चा क्या है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक ग्लास में जस्ट टेक अ टम्बलर वाटर, ठीक है, और उसमें एक ड्रॉप या दो ड्रॉप इंडिगो डाल दो, जिससे हम अपने सफेद कपड़ों में नील डालते हैं, ठीक है। उसका घोल बनाया। एक फ्रेश कॉटन लो और उस कॉटन को उसमें डिप कर दो। कर दिया? अब उसमें डिप कर दिया तो जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो क्या चेंज हमें नजर आएगा उस कॉटन में जो हमने डिप करने से पहले हमारे पास था, और उस कॉटन में जो डिप करने के बाद चेंज आया? क्या क्या चेंज आएगा? क्यों भाई आयुषी, क्यों भाई आतिया, मेमूना, देविका, मानसी, रिमझिम, याचना, क्या चेंज आएगा? कलर चेंज हो जाएगा, वेरी गुड। वेट हो जाएगा, वेरी गुड। और श्रिंक हो जाएगा, वेरी गुड। और वेट बढ़ जाएगा, हैवी हो जाएगा ना? क्यों हो जाएगा हैवी? हैवी क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो लोग स्मोक करते हैं बिकॉज ऑफ वाटर, है ना, एब्जॉर्ब्स वाटर, इट विल एब्जॉर्ब वाटर। अब जो लोग स्मोक करते हैं मतलब, हाँ क्योंकि कॉटन एब्जॉर्ब करता है। अब जो लोग स्मोक करते हैं तो वो जो एयर है, आपने देखो लोगों को स्मोक करते देखा होगा कि दे इनहेल दैट एयर, है ना। और जब वो कंटिन्यूएशन में स्मोक करते हैं तो उसका जो स्मोक है, जो धुआं है, वो कंटिन्यूएशन में लंग्स में जाता है। अब क्योंकि अगर वो ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीज गैस होगी तब तो उसको एल्वुलाई आइडेंटिफाई कर पाएगा। लेकिन जब वो इस तरह से स्मोक होगा, जो कि हम खुद देखते हैं, क्या हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं? क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन हम स्मोक को देख सकते हैं। तो सोचो वो कितना डस्की होगा, और वो जाकर कैसे वो जो एल्वुलाई जो यहाँ पे बहुत माइन्यूट माइन्यूट से पोर्स हैं, वो वहां जाकर ब्लॉकेज कर देगा, और ब्लॉकेज कर देगा तो कांस्टेंट फॉर्म में वो वहां पर फिल हो जाएगा, भरता जाएगा। और जब वहां पे गैपिंग हो जाएगी तो वहां पर सेप्सिस होना शुरू हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। पस फॉर्मेशन होता है जिसके कारण जो एल्वुलाई का इंटरनल टिश्यू लाइनिंग है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, वो सड़ने लगती है, जिसके कारण एक टिश्यू अगर खराब होता है तो दूसरा टिश्यू पे भी असर करता है, क्योंकि उसका जो केमिकल नेचर है वो अल्टर कर देता है एडजेसेंट सेल को भी। इस तरह से धीरे धीरे वो एल्वुलाई, वो ब्रोंक्यूल, वो ब्रोंकाई में भी इंफेक्शन फैला देता है। एंड फाइनली जो स्मोकर्स होते हैं दे डू सफर विद अ सीवियर लंग प्रॉब्लम। शुरुआत में उनको खांसी आती है ना, कुछ भी करते एकदम से दमा जैसी खांसी आती है, एंड धीरे धीरे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और द मोमेंट वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब उनको इस तरह से टेस्ट लगाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू होल्ड द एयर फॉर मोर देन 5 सेकेंड। कई बार तो 2 से 3 सेकेंड में भी सांस नहीं रोक पाते, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया था ना। बेसिकली इस तरह का एक्सरसाइज होता है, इसको करना चाहिए। एक्चुअली इट विल हेल्प अस टू बूस्ट अवर इनर लाइनिंग्स ऑफ एल्वुलाई, है ना। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो फिजिकल वर्जिश होती है, जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं मतलब प्योर फॉर्म ऑफ एयर इज गोइंग टू इनसाइड ऑफ आवर लंग्स, और जहां पर एल्वुलाई जो है उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है, प्रॉपर काम करने लगता है। और अगर वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है तो वहां पे वो चीजें सेप्सिस क्रिएट करती हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली अल्टरेशन होता है दैट एल्वुलाई की परफॉर्मेंस का, और द पेशेंट सफर्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द वेरियस ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आया समझ में? और कोई क्वेश्चन और कोई क्वारीज? अंडरस्टूड? दैट्स अमेजिंग। सो टुडे फाइनली we completed this chapter and tomorrow we are going to start another chapter. ठीक है, चलो। सो बच्चा, we are signing out for the day. See you tomorrow with a lot of enthusiasm. और सब लोग चैप्टर्स, ये वाले चैप्टर को वापस से रीड करके रखेंगे। ओके, आई एम साइनिंग आउट फॉर द डे बच्चा। एंजॉय।
Mm.